everyone. A very logical day to all of you. And here we are with the discussion of the first editorial of the Indian Express that has the title Aiming High. Of course, aiming high तो हमेशा करना भी है और तुम्हें भी aim high तो करना ही है. But let us see what the author is talking about or in what context this is given here. Right? तो ये है इंडिया के हिसाब से. Let us see अब क्या है इधर. In 2007-8, India was classified as a low middle income country. Was classified है तब 7-8 में, ठीक है. India then had a per capita income of 1022 as per the International Monetary Fund. By 2024, more than a decade and a half later, the average individual income is estimated to have risen to 2697. अब यहाँ पर by how much has it risen, इसका भी थोड़ा सा ध्यान देंगे. वैसे हम क्या करते हैं, we usually do not pay much attention to the number if we are solving such a passage in a reading comprehension section, right? But here we have to understand that it has risen or estimated to have risen as per the fund. In 24-25, the per capita income required to transition from low middle income to upper middle income status has been pegged at this much. अब यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों है? ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ तक हमने अपनी मंजिल की तरफ चलना है, ठीक है, कहाँ पहुंचना है और अभी तक हम कहाँ पर पहुंचे हैं. So if this is 1022, we are now at 2697. What is required is 4516 by the World Bank. Again, it is all according to the IMF. Now, going by the current projections, so if you can connect this, तो आगे मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए हम कैसे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा. This is what the passage is now about, right? So going by the projections, IMF expects the country's per capita income to rise to 4195 by 2029, right? So if this was in 2007-8, right? This is in 2024. This is expected to be in 2029, and this is what we want. So as per the World Bank, India is on track to become an upper middle income economy by 2032. So according to this 4516 हमारे पास 2032 तक हम पहुंच जाएंगे. ये इसका projection है. The challenge, however, is to become a high income developed country by 2047. ये challenge है. डेवलप्ड कंट्री बनना. यहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम की बात चल रही है बस. We need to become a developed country also, and that is the challenge, that by 2047 we are able to become a highly developed country. ठीक है, हाई इनकम के साथ साथ डेवलप्ड कंट्री भी होना है. और ये सब प्रोजेक्शन किस चीज का है? सिर्फ हाई इनकम का, पर कैपिटा इनकम, बस ये इसका प्रोजेक्शन है. So from the first paragraph, you get the point that yes, this task is not going to be easy. There are quite many challenges. And what is the challenge as given by the author here is that we need to become a high income developed country by the end of 2047. Okay? Now, this is a daunting task. Now the author's opinion. उसे कहा कि ये चैलेंज तो है, पर चैलेंज तक पहुंचना, चैलेंज को पूरा करना, ये प्रॉब्लम हो जाएगा. प्रॉब्लम है, डॉन्टिंग है, मतलब नॉट एन इजी टास्क. Over the past several decades, only a handful of countries such as South Korea, Czech Republic, and Romania have been able to transition from middle income to the high income status. ये सिर्फ ये कंट्रीज को चेंज हुई है और कुछ कंट्रीज बीच में अटक गई हैं. They have been unable to make this transition. Now, these countries have been caught in the middle income trap. The question is, can India escape the fate of these countries? The moment this person asks a question, मतलब उसे एक ये assumption है कि possibility इंडिया ये काम या इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए. ठीक है, यहाँ पर आपका एक assumption क्रिएट हो सकता है. assumption तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने से पहले का जो थॉट दिमाग में था, that becomes an assumption. अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे
तो इस मंथ से हम थोड़ा बहुत अभी और क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की तरफ डिस्कशन करना शुरू करेंगे. जनवरी फरवरी मैंने मेन आइडियाज किस तरीके से निकालनी है वो तुम्हें अच्छे से समझा दिया है, एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट, ऑफ कोर्स coming up with a little more difficult articles from April, but then this month I'm starting with the understanding of the critical reasoning part. So, how to come across it. So, when the question is asked that can India escape the fate of these countries, that means it is a possibility that India might get stuck in the middle income group, right? Now, in a recent economic memorandum titled Becoming a High Income Economy in a Generation, the World Bank estimates that India would need to grow at 7.8% over the coming decades to become a high income country by 2047. अब देखो उसने वापस से कुछ डेटा बेस्ड किया है. अब हमें 2047 तक अगर पहुंचना है, हाई इनकम डेवलप्ड कंट्री बननी है, तो हमारे पास एस्टिमेटेड क्या है, 7.8% ग्रोथ होना चाहिए, राइट, ओवर द कमिंग डिकेड्स. कमिंग डिकेड्स मतलब ये 20 वाला डिकेड खत्म होगा, फिर 30 वाला है और 40 वाला आधा हो जाएगा. तो कमिंग डिकेड्स इसलिए है कि इसमें से एवरी ईयर वी नीड अ 7.8% ग्रोथ. टू पुट दिस ग्रोथ इन पर्सपेक्टिव, ठीक है, टू पुट दिस ग्रोथ इन पर्सपेक्टिव मतलब अब तुम्हें इस ग्रोथ का जो ग्राफ चलेगा वो समझाने के लिए अब आपको इसका रेफरेंस देना है. Country grew at 6.7% over the 2 decades prior to the COVID pandemic. मतलब 2001 से लेके समझ लो तो 2 decades में, 20 सालों में उसका एवरेज कितना था, 6.7% ग्रोथ हुआ है. ठीक है. Thus, a business as usual scenario, while it may lead to tangible welfare gains, will not suffice to deliver such high growth consistently over such a long period. ठीक है. अब अगर 20 सालों में उसका एवरेज ग्रोथ 6.7% से इंक्रीज हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमें एस्टिमेटेड क्या चाहिए, 7.8% एवरी ईयर वी नीड. सो देन द ऑथर सेज दैट दिस बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो मींस जैसा चलता रहे वैसे ही चलेगा. तो अगर ऐसा सिनेरियो रहेगा तो देन इट इज गोइंग टू बी एन अपहिल टास्क अगेन to reach 7.8% every year and to become a high income developed country by 2047, right? So this part of the paragraph is again giving or making many assumptions that see, India might not be able to do this, right? Every year India might not make 7.8% growth, और average out करने के लिए भी इससे ज्यादा इससे कम कभी हो सकता है. तो पॉसिबिलिटी ये है या प्रॉब्लम ये है कि हाई ग्रोथ हमें 2047 तक पहुंचने के लिए हाई ग्रोथ मेंटेन करना ही पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंटली. कंसिस्टेंटली करना आसान काम नहीं होगा. तो ऑथर का ये जो पहला पार्ट है, फर्स्ट सेंटेंस दैट ही सेज इन द सेकंड पैराग्राफ, that it is a daunting task, so he has explained everything in the paragraph. Now that you see why it is daunting, तो रियलिटी दिखा दी उसने कि देखो कितने परसेंटेज से ग्रोथ अभी हो रही है और कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है और कहां तक पहुंचने के लिए. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द structure of the passage also if we apply prep everywhere. The author has a point to state here, but then he has justified his point by using the data given, right? And like clearly stating कि ये देखो ये सिनेरियो है. Same thing he has applied in the second paragraph, also coming up with this point. And in between, of course, he is making many assumptions also. तो अब आप डुअल काम करोगे, अब आप मेन आइडिया भी कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो भी समझते जाओगे, और उस ओपिनियन, उस आइडिया तक पहुंचने के लिए उसे कैसे assumptions किए हैं वो भी आप समझते जाओगे. Because again, if you don't know what are assumptions, so please go back to the YouTube session that I've taken on assumptions and kindly follow that. Right? आपको वो सेशन मिल जाएगा विदिज्ञ क्लैट पर. Now the bank has outlined the policy agenda required to achieve this. So this revolves on promoting structural transformation. Required to achieve this में बैंक ने तो आउटलाइन कर दिया उसने कि क्या करना है, पूरा एजेंडा क्लियर उसके सामने. लेकिन चाहिए क्या उसमें? What it requires is the structural transformations, right? Increasing investments, facilitating the creation of more productive jobs, technology adoption, and enabling states to grow faster. ठीक है, states को हेल्प करना है कि वो और भी अच्छे से आगे बढ़ेंगे. तो ऑफ कोर्स एज अ होल द कंट्री डज रिक्वायर दिस ग्रोथ,
but then it has to help its poor states or help its other states also to, मतलब कुछ तो है जो आगे से बढ़ रहे हैं, but then it needs to help the states to improve or grow faster, right? So this is all what is required. ये उनका सेट एजेंडा है, ठीक है, ये रहा. Now, its accelerated reforms scenario envisages the investment to GDP ratio rising to 40% by 2035. अब ये जो है ना इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जीडीपी कितना है और उसके कितने परसेंटेज से हम वापस से इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं, उन दोनों का रेशियो होता है. ऐसे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे रेशियोज आते हैं, ठीक है. जो लोग कॉमर्स फील्ड के हैं वो भी समझते हैं, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स पसंद है वो उन्हें भी समझ में आना चाहिए, और नहीं तो फिर आप ये रेशियोज लगाएंगे, ये आप डालेंगे एंड यू विल बी रीडिंग इट देन. But you have to understand, like, investment to GDP ratio, it has risen to 40% by 20, or it will rise to 40% by 2035. The female labor force participation rate increasing to 55% by 2050, and higher productivity, ये भी होगा. So all this is still estimated कि ये 40% तक कब तक बढ़ेगा, 2035 तक. 55% फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन कब तक बढ़ेगा, 2050 तक. इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो इज करंटली अराउंड 33%. देखो अब उसे अभी बता दिया, जो कि 40% तक बढ़ना है विद सबड्यूड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स. तो 33% तक तो कर लिया है. सबड्यूड क्या मतलब होता है, थोड़ा सा कम. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स अभी थोड़े से कम है, अगर आप उनको और ऐड कर लेंगे तो फिर then it can reach this 40% mark. The female labor force participation, while rising sharply over the past few years, is at 41.7%, 15 years and above. ठीक है, इसे हम मानेंगे 15 years and above वाली अगर फीमेल काम करती हैं तो हम उसको लेबर फोर्स में ऐड करेंगे, ठीक है. तो वो अभी डेटा 41.7% है, जो कि 55% होना चाहिए या होगा 2050 तक. दिस इज व्हाट इज एस्टिमेटेड. rather than exiting agriculture, more are now employed in the labor. अब उसने एक और बात कह दी, ठीक है, उसे आउटलाइन तो कर लिया बैंक ने, लेकिन ये सारी चेंजेस तो जरूरी है. अब उसने चेंजेस क्या किया, मतलब एस्टिमेट क्या किया है कि ये होना चाहिए क्या, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो ये बढ़ना चाहिए. सेकंड, फीमेल वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, कब तक बढ़ेगा देखते हैं, राइट. तीसरी बात जो उसने कही है कि दैट इज एग्रीकल्चर. ना एग्रीकल्चर, भाई इतने सारे लोग डिपेंडेंट हैं, तो ऐसा होगा कि एग्रीकल्चर कल्चरिस्ट वाली जो फैमिली है उसमें से कुछ लोग कुछ और काम करेंगे, तो they'll be moving out of agriculture sector. But then this is the other way around now, right? There are more are now employed in the sector. The percentage of workers engaged in the farm sector has risen to 46.1% 23-24 from 44.1% in 17-18. तो 17-18 से 23-24 5 सालों में उसे परसेंटेज कितना बढ़ा लिया, 44 से लेके 46 कर दिया. ठीक है, ये जो डैश होता है, इट ओनली गिव्स यू एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट इज गिवन हियर, दैट पीपल आर इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग दे आर नाउ एम्प्लॉयड मोर इन द सेक्टर, एंड हाउ दिस इज अ इंक्रीज इन द परसेंटेज. Right now, putting India on a sustained higher growth trajectory will require deeper and wide-ranging reforms by both central and state governments. तो deeper reforms भी चाहिए, sustainable यानी ज्यादा समय तक, लंबे समय तक चलने वाली चीजें, ठीक है, तभी हम सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं. एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो आप कुछ एक ना उसे क्विक फिक्स सॉल्यूशंस कहते हैं. तो क्विक फिक्स सॉल्यूशंस तो कई सारी प्रॉब्लम्स के हो जाती है, तो कुछ समय के लिए तो आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल बेनिफिट मिलती है जब आप डीपर रिफॉर्म्स करते हैं या स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं. ठीक है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस से चेंजेस नहीं होते, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. दे आर लाइक ट्रांसाइंट और वॉलेटाइल, हमने कल या परसों हमने वॉलेटाइल वर्ड किया था कहीं, ठीक है. तो वो चेंजेस होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए. हमें चाहिए सस्टेनेबल हायर ग्रोथ. तो लंबे समय के लिए हायर ग्रोथ हमें कब और कैसे मिलेगी, कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसे मिलेगी, जब हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे. ये ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए और स्टेट और सेंटर को मिलके काम करना चाहिए. तभी इसने कहा था कि इट शुड एनेबल द स्टेट्स टू ग्रो फास्टर. Third paragraph is giving you what all is required for the country, what steps are to be taken
by the country so that they reach that aim that they have set themselves for coming into that group of high income developed country बनने के लिए जो चाहिए वो राइट. तो आई होप अब कई लोग डेटा देखकर डर जाते हैं, तो प्लीज मत डरो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. You it only data is given as an extension of the point stated by the author. So the point stated by the author, let us see now what it is. अच्छा, ये है हाई इनकम वाली कंट्रीज. ठीक है, ये लिस्ट मिली है मैं लेटेस्ट भी 2024 की लिस्ट है आई थिंक सो ये. तो ये है हाई इनकम एंड वे यूएसए इज स्टिल ऑन द 8th पोजीशन इनकम के हिसाब से इनकी पर कैपिटा इनकम में. अब यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी तो और इंडस्ट्री अगर होती है अच्छी तो फिर पर कैपिटा इनकम बढ़िया हो जाता है, राइट. तो इंडिया तो दूर दूर तक नहीं है अभी. नाउ द क्वेश्चन फॉर द डे, व्हाट कैन बी द अंडरलाइंग assumptions इन ईच ऑफ दीज पैराग्राफ्स. ध्यान से पढ़ो समझो. ठीक है, अंडरलाइंग assumptions का मतलब होता है समथिंग दैट इज इम्प्लिसिट. ठीक है, अब अगर हम ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इज अनलाइकली टू एंटर दिस कैटेगरी बाय द एंड ऑफ द डिकेड, बट एज फॉर द वर्ल्ड बैंक इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम एन अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी बाय 2032. राइट. अब इसमें भी ये अजम्पशन है कि इंडिया की ग्रोथ जो अभी हो रही है हाई पर कैपिटा इनकम, वो आगे के आने वाले सालों में, ठीक है, 3 या 4 सालों में बढ़ जाएगी. ठीक है, पॉसिबिलिटीज और कुछ भी हो सकती है, पर ये बढ़ जाएगी. तभी हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि यस इट इज गोइंग टू कम अप एज अ हाई इनकम इकोनॉमी बाय 2032 when you are assuming that the income is going to increase, right. Now the challenge however is to become a high income developed country by 2047. The moment it uses this word, the challenge however is, that means ऐसे कि ठीक है यहां तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, आगे का रास्ता प्रॉब्लमेटिक है, right. So there will be more problems in becoming a developed country than coming to a high income. This is what we can understand and this is what he considers. ठीक है, ध्यान से सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना तो इसमें से छिपे हुए जितनी भी चीजें होती है ना वो आपके अजम्पशंस बन सकते हैं. अगर आप उसको डिराइव करके फिर क्वेश्चन या फ्रेमिंग सेंटेंस का चेंज हो जाता है, वो आगे जाके इन्फ्रेंसेस बन जाएंगे. ठीक है, अभी हमें इसका बेस चाहिए, तो बेस क्या होगा on which this conclusion or this claim depends. When it says that it is going to become a high income category, included in the high income category by 2032 means that per capita income is definitely going to grow in these next 4-5 years. अगर ये नहीं होगा बेस तो फिर ये सेंटेंस ऑथर नहीं बोल सकता है. ठीक है, सेकंड पे आते हैं. To put this growth in perspective, the country grew at 6.7% over the 2 decades prior to the COVID pandemic. Thus, a business as usual scenario, while it may lead to tangible welfare gains, will not suffice to deliver such high growth consistency over such a long period. Right? It will not be sufficient means it requires something more. ठीक है, तो अब जब उसने बोल रहे इट इज नॉट सफिशिएंट टू डिलीवर दिस ग्रोथ, दैट मीन्स यू नीड टू डू समथिंग एडिशनल, राइट. अगर एडिशनल नहीं करना होगा तो फिर ये नहीं बोल सकता है ऑथर, फिर वो बोलेगा इट इज सफिशिएंट, राइट. दूसरा ये भी है अजम्पशन कि आपने कुछ एडिशनल कर भी लिया तो भी ये सिनेरियो चेंज होगा और आप हाई इनकम कैटेगरी में आ जाओगे, ये भी तो अजम्पशन है, एस्टिमेशन है ना ये भी. ठीक है, तो कुछ एडिशंस करने से भी होगा. मतलब आप सोचो आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, जब आप 3 लोग काम करते हो, अभी तक नहीं बन रहा है अच्छे से प्रोजेक्ट, आपने कहा चलो 2 लोग और आने चाहिए, तो अब 2 लोग और ऐड हो जाते हैं तो भी आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा, ये आपका अजम्पशन है. 2 लोग और ऐड होने से पॉसिबिलिटी है कि प्रोजेक्ट अभी भी अच्छा नहीं बना, राइट. क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया था कि प्रोजेक्ट बनाना कैसा है, इन 3 लोगों को तो नहीं आया, बाकी के 2 जो ऐड हुए उन्हें वो भी नहीं आया, right. So assumption is when you say there is something else is required to be done, right. It is not sufficient means something else is required, right. Now when you add something to it, more work, more steps to be taken, and all that is going to help you in achieving what you target. So this is also an assumption. Whatever you are going to add is going to push you towards the target. It is an assumption again.
राइट। तो यहाँ पे जितनी भी छिपी हुई कहानियां है ना, वो आ जाएंगी सब assumptions में, राइट। तो इट इज कॉल्ड implicit, इट इज कॉल्ड a hidden premise. Putting India on a sustained higher growth trajectory will require deeper and wide ranging reforms. ठीक है, इसे कहा will require reforms. अब आपका assumption कि हाँ reforms ऐड करने से हम यहाँ पे आ जाएंगे, हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे पहुंच जाएंगे, बस। ये हिडन स्टेटमेंट होता है, तभी ये हिडन प्रीमाइस लिखा है मैंने, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द सेंटेंस ओनली, वॉट एवर इज हिडन, जो समझ में आता ऐसा। बाय बोथ सेंट्रल, अच्छा ये भी है हमारे पास एक और assumption कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स में रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है, और दोनों मिलके काम करेंगे, ये assumption है। स्टेट रेडी है कुछ चेंजेस करने के लिए, ये assumption है। सेंटर हेल्प करेगा स्टेट का, ये assumption है, ठीक है। सो देयर वुड बी मेनी नाउ, ऐसे ही आप कुछ एक दो और आर्टिकल्स पढ़ के देख लेना। चलो, मेन आइडिया से हमने कर ही लिया है पूरा डिस्कशन। ट्रांसिशन होना है and unlikely है, so this is one idea, right? Daunting task was another point that I said, and it is not going to be sufficient to deliver such high growth. तो मतलब ऑथर को पहले ही अंदेशा है कि जो अभी जिस स्पीड से अभी हम चल रहे हैं वो काफी नहीं है, हमें कुछ और करना होगा, ये उसका ओपिनियन है, राइट। सो दिस इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड ये भी रिक्वायर्ड था, deeper and wide ranging. So see, the two parts of the paragraph, they come up in forming a single point. So what is required now? What India needs to become a high income economy, ye diya hai. But India needs is wider and deeper reforms for sustained growth. ये दो चीजें थी, अब दोनों को कंबाइन करके हम ये सेंटेंस देखें। India needs deeper and wider reforms to ensure the sustained income growth needed to become a high income इकोनॉमी कंट्री। तो ये हो जाता है हमारे पास एम, ठीक है, और ये हो जाता है हमारे पास रिक्वायरमेंट, राइट, और ये हो जाता है उसका रिजल्ट। तो हमें यहाँ ये एम तो कर लिया है, अब यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, कंबाइनिंग दीज थ्री थिंग्स टुगेदर कम्स अप एज योर मेन आइडिया डेफिनेटली। सो now, taking the vocabulary part here, let us see two words. ट्रांसलेशन तुम्हें मीनिंग समझ में आता है, प्रोजेक्शन भी समझ में आ जाता है, पर उसका रूट वर्ड दे रही हूं तुम्हें आज। ट्रांस का मतलब होता है ट्रैवल करना यहां से यहां, और प्रोजेक्शन में जेक्ट का मीनिंग है थ्रो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे सब्जेक्ट आ जाता है, समथिंग दैट इज बिलो द बिलो द लेवल, और कंट्रोल होता है, सबका मतलब होता है बिलो द लेवल, एक रेफरेंस पॉइंट होती है उससे नीचे होता है सब। तो सब्जेक्ट मतलब जैसे द पर्सन हु इज इन योर कंट्रोल, so that becomes your subject, right? जैसे साइंस के कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसको सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्टर होता है, इट थ्रोज द इमेज, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टर, ठीक है। एक एब्जेक्ट वर्ड होता है, एब्जेक्ट पॉवर्टी होता है, यू कैन रिलेट इट टू पॉवर्टी, मतलब इतनी खस्ता हालत होती है, मिजरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ट्रांस के हिसाब से इफ यू कैन कम अप विथ लाइक ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट, यू कैन गेट मेनी ट्रांस। आई गिव यू वन और टू। ट्रांसलेट आपको आता है, एक वर्ड आता है ट्रांसलिटरेट, ठीक है। ट्रांसलिटरेट, ट्रांसलिटरेशन, अंडरस्टैंड, ट्रांसलेट लैंग्वेज में होता है चेंज, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू फ्रेंच एंड ऑल दैट। ट्रांसलिटरेशन सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट में चेंज होता है, जो हम हिंदी हिंदी वर्ड होता है लेकिन हम लिखते इंग्लिश में है, ठीक है, जो आप जैसे मैसेजेस लिखते हैं वैसा, ठीक है। तो ट्रांसमिट है, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट यू कैन यूज,
right? Transparent and all. So this is one task for you now. Translucent, transparent, transport, transportation, transferable. You find many words there. ठीक है, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव. तो आप वैसे बना लेना जैसे मैं अपने रूट वर्ड सेशंस में बताती हूँ आपको, वैसे लिख लेना सो दैट यू कैन फॉर्म अ ट्री डायग्राम और समथिंग. फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स और जितने मिलते जाएंगे देन यू कैन राइट ऑन दैट पेज. ठीक है. So the phrase now is caught in the trap, right? और दूसरा होता है a handful of. Handful means nominal, insignificant, right? Just a few. नाम मात्र का उसे nominal कहते हैं. Insignificant number, just a handful. Can India escape the fate of these countries? ठीक है. Escape the fate का मतलब क्या हुआ? ये नसीब का इनका कैसा होगा नसीब? साउथ अफ्रीका, मलेशिया जैसा या साउथ कोरिया जैसे? तो क्या इससे वो बच पाएंगे? राइट. नाउ एक प्रॉब्लम ये होती है कि एस्केप फ्रॉम नहीं आता है. यू एस्केप समथिंग, यू रन अवे फ्रॉम समथिंग, यू फ्ली फ्रॉम द स्पॉट, राइट? बट यू एस्केप समथिंग. कई बार क्यों एस्केप फ्रॉम द फेट नहीं, यू एस्केप द फेट. ठीक है. छोटा सा एकदम पॉइंट ध्यान में आ गया तो बता दिया. पर्सपेक्टिव नाउ, सफाई से सफिशिएंट वर्ड आ जाता है हमारे पास. ठीक है. दिस इज सफिशिएंट. Now here also perspective, I am giving you another root word here today. Spect is to see, right? तो स्पेक्ट है जैसे स्पेक्टिकल होता है, स्पेक्टिकल यानी नजारा होता है, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा होता है. ठीक है. प्रोस्पेक्ट, ये परस्पेक्ट है, ये प्रोस्पेक्ट होता है. प्रोस्पेक्टिव, बायर्स. प्रोस्पेक्ट प्रो मतलब फ्यूचर होता है, पर यानी हर एक होता है. तो पर्सपेक्ट, पर्सपेक्टिव यानी हर एक के नजरिया. ठीक है. इन दैट वे यू कैन एक्चुअली कम अप विथ more words with spectacular. बहुत बढ़िया नजारा जो होता है उसे स्पेक्टेक्युलर कहते हैं. तो आई एम गिविंग ओनली 3 4 3 4, बट योर टास्क इज दैट यू नीड टू राइट मोर. देन आई विल टेक मोर इन द रूट वर्ड सेशन ऑन यूट्यूब. ठीक है. envisages may be विज वर्ड है, envisages टू सी इन द फ्यूचर. ठीक है. तो यहाँ पे विज यानी विजन आ जाता है, टू सी, विजन, विजिबल. ठीक है. विज और विड का मीनिंग होता है टू सी. तो विजुअल, विजन, विजिबल, विजनरी. आगे मार्केट में क्या होगा, कैसे होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, या किसी ने कुछ एक नया सोच के रखा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वो विजनरी हो जाएगा. सबड्यूड में एस यू बी आ जाता है, सब का मतलब होता है अंडर. ठीक है. तो सब, इफ एस यू बी सब एज अ प्रीफिक्स का मीनिंग अंडर होता है, तो आप देखो सब डिविजन, सब इंस्पेक्टर, सब कैटेगरीज. ठीक है. सबऑर्डिनेट. नाउ यू कैन राइट दैट एंड देन यू कैन राइट 5 to 6 more. ठीक है. सो मेक नोट्स प्लीज. आई सेड दिस वेरी ऑफन, वो जरूर कर लेना. अब मोर टू रीड में आप आज की तारीख में और क्या पढ़ेंगे? द हिंदू में से ओवर सेंट्रलाइजेशन थ्रेटन्स फेडरल हेल्थ पॉलिसी. तो ये हो गया आपका थोड़ा सा सोशल साइंस सिविक्स से रिलेटेड. ठीक है. देन ये हो गया थोड़ा सा टेक्निकल. डीप सीक्स मार्केट डिस्ट्रप्शन मस्ट अवेकन इंडिया. सिर्फ टेक्निकल नहीं है, लेकिन ये क्या क्या कर सकता है और उसका असर, उसका इम्पैक्ट इंडिया और इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के मार्केट पे किस तरीके से पड़ेगा. द ग्लोबल इम्पैक्ट और ऑन द डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो. That is this, you will be able to understand the complete scenario. It is in an analytical manner. And this, then who will apologize to the Himalayans? यहाँ पे हिमालयन सिर्फ हिमालय
पर्वत वाली बात नहीं है, पर वहां पे रहने वाले लोगों के बारे में है, कल्चर के बारे में है, लैंग्वेजेस के बारे में. सो इट इज गिविंग यू अ रेफरेंस ऑफ नॉर्वे एंड व्हाट द प्रेजेंट डे हैज डन, हाउ ही हैज like repealed quite a few laws जो कि discrimination laws थे, जो कि लैंग्वेज और लिटरेचर को सबड्यूड कर रहे थे, ठीक है, उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे, right? And then he says no, now I'll try to revive these languages and all. तो उसका इनिशियल स्टार्टिंग उसे नॉर्वे के एग्जाम्पल से किया है, पर देन वही बात हिमालयंस में किस तरीके से एज अ पैरल चल रही है. What problem the Scandinavians are facing there with the language and literature, right? The same thing the Himalayans are facing here in India, right? And so it's a very interesting topic, a different genre, right? पर मजा आएगा उसको पढ़ने में, पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है, तो आई सर्च फॉर सच आर्टिकल्स एंड सजेस्ट. तो प्लीज इतनी मेहनत का तो इतना फल दे दो कि तुम लोग पढ़ लो उसको, बस. दैट इज ऑल दैट आई वांट. So that's all for today. Thank you, and stay logical and stay positive. Thank you. See you soon.